Previous lecture we started with the topic, new topic, that is MOSFET scaling. Okay, CMOS latch up part is there, but it is not there in your syllabus. Okay, so don't refer that part. Okay, when I will give you notes, this CMOS latch up part is there in notes, but don't refer that because it is not in your syllabus. So this MOSFET scaling is there. Okay, this MOSFET scaling part, it is there. So you have to refer this part. So now we will study MOSFET scaling. So yesterday, sorry, in previous lecture we discussed some part, or you can say, what do you mean by scaling? Okay, what do you mean by scaling factor S? So what do you mean by scaling? If I'm Reduction of saying, overall dimensions. yes, yes, right. Now you know scaling matlab kya? If I'm saying downscaling, okay, there are two, upscaling and downscaling. Downscaling means we are reducing the dimensions of, or you can say overall size of the MOSFET. And why we are doing this? Because we want to integrate more and more number of transistors in a single chip. Okay, so that is nothing but a VLSI. So जैसे जैसे technology advance होती है, okay, so what will happen? Actually finally what you are doing, technology advancement means what? You are reducing the S factor. Okay, or you can say minimum feature size. Minimum feature size matlab kya? What do you mean by minimum feature size? Again, we had discussed this part also. The minimum dimension of that. Yes, yes, right. It is a minimum dimension which is possible in that particular technology. That means if I'm saying you are working on the 180 nanometer. Okay, you are working on the 180 nanometer मतलब क्या? अगर तुम लोग जो भी मॉसफेट उसमें डिजाइन करोगे, ओके, इन दैट प्रोसेस, इन दैट टेक्नोलॉजी, इफ यू आर डिजाइनिंग अ मॉसफेट, देन मॉसफेट का फीचर लेंथ, और यू कैन से द मिनिमम, एनी मिनिमम डायमेंशन, ओके, कोई भी जो डायमेंशन है, अभी डायमेंशन कौन कौन सा होता है, जो अपने को पता है, दैट इज लेंथ ऑफ द चैनल, विड्थ ऑफ द चैनल. ओके, सो सपोज there is a length of a channel, that is length of gate, or you can say length of a channel. So length of a channel is minimum, and that will be 130 nanometer. Okay, so 130 nanometer will be the minimum dimension possible in 130 nanometer technology. If I'm saying 180 nanometer, then 180 nanometer mein gate length, or you can say channel length minimum which is possible, that is 180 nanometer. Okay, 180 से तुम लोग ज्यादा रख सकते हो, you can make larger than 180 nanometer, but you cannot make any dimension. It can be length, it can be width of the channel lesser than 180 nanometer. Okay, so that is the process, that is the technology. So minimum feature size matlab minimum dimension kitna possible hai, and that is given by the technology. So 180 nanometer matlab minimum feature size is 180 nanometer. If 130 nanometer, तो 130 nanometer का minimum feature size है. Okay, so can you anybody tell me what is the current minimum dimension? What is the current technology? 130 mm. 130 nanometer. ओके, करंटली मतलब अब तक जितना भी तुम लोगों ने सुना रहेगा कहीं से भी, ओके, गूगल वगैरह या न्यूज, सो व्हाट इज द मिनिमम चैनल लेंथ, और यू कैन से फीचर साइज विच वी हैव गॉट सक्सेसफुली, जिस पे काम हो चुका है कुछ. सी whenever I'm saying टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ है जो अभी काम हो चुका है, जिस पे अभी होना बाकी है, दैट इज डिफरेंट थिंग. सो दैट वी विल टॉक लेटर, बट अभी मिनिमम साइज क्या पॉसिबल है बाय एनी कंपनी, बाय एनी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? 50 nanometer. 50? ओके, Yes, ma'am. 50. ठीक है, और किसी को कुछ पता है? मतलब तुम लोग अपडेट्स नहीं रख रहे हो? ओके, इसी अभी तुम लोग अपडेट्स रखना चालू करो. 7 नैनोमीटर, 7. ठीक है, 7 नैनोमीटर का एप्पल का जो आईफोन है, ओके, आईफोन आई थिंक 12 मैम या 11 या AMD 12 का जो भी, प्रोसेस 11. जो है वो 7 नैनोमीटर है, 4 नैनोमीटर भी आने वाला है हाँ, इंटेल का 7, हाँ, प्रेजेंटली 4 नैनोमीटर 14 अभी आने नैनोमीटर वाला है, चल रहा राइट, 4 नैनोमीटर आने वाला है. एंड है. यस मैम. ताइवान जो TSMC है, नाउ दे आर टारगेटिंग बाय 2024, दे आर टारगेटिंग 2 नैनोमीटर. मतलब समझ रहे तुम लोग को? मतलब अभी 4 एक्सपेरिमेंट में है, उसके बाद 4 के बाद भी जाएगा 2 और कम, दैट इज 2 नैनोमीटर. तो जो करंटली अवेलेबल है, ओके, दैट इज द आईफोन आई थिंक आईफोन 11 यूजिंग द चिप मैन्युफैक्चर्ड बाय, और यू कैन से फैब्रिकेटेड बाय TSMC, एंड दैट इज 7 नैनोमीटर चिप. तो ये तुम लोग गूगल पे सर्च करो, ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग कलेक्ट करो, तो तुम लोग को पता चलेगा. ओके, सो Excuse me, ma'am. हेलो, बोलो. Excuse me, ma'am. Some people are trying to join ओके, the ओके, meeting. वेट, टेल देम टू जॉइन नाउ. Joined? Have they joined?
I've dropped the Okay. message, ma'am. Okay. ओके सो दैट इज द मिनिमम फीचर साइज. ओके, तो तुम लोग को ये अभी स्केलिंग मतलब डाउन स्केलिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए. मिनिमम फीचर साइज क्या होता है वो पता होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज स्केलिंग फैक्टर एस. सो स्केलिंग फैक्टर एस मतलब अभी 130 नैनोमीटर मिनिमम लेंथ है. सो वो लाने के लिए यू विल डिवाइड द डायमेंशन, मतलब ओरिजिनल जो डायमेंशन था जो भी मॉसफेट का, सो दैट डायमेंशन विल बी डिवाइडेड बाय that dimension will be divided by some factor. That factor is called as S. Okay, have they joined? Should I share the screen? अगर अभी कुछ issue है तो then let me know, okay, if anybody is trying to join, because whenever I am on this screen then sometimes that meet is not working. Okay, some students then they will be unable to join, so I have to switch to that particular screen again. So if there is anybody waiting outside, let me know. Okay, so MOSFET scaling S. तो ये जो S दिख रहा है तुम लोग को, okay, this S is nothing but the scaling factor. ओके, सो दिस स्केलिंग फैक्टर मतलब क्या, ओरिजिनल डायमेंशन था तुम लोग के पास. ओके, ओरिजिनल कुछ सपोज मॉसफेट का लेंथ एंड विड्थ है. ओके, उसको तुम लोग अभी स्केल डाउन कर रहे हो, मतलब तुम लोग उसको उसका लेंथ कम करने वाले हो. तो कम करने वाले मींस ओरिजिनल लेंथ विल बी डिवाइडेड बाय सम फैक्टर, and that factor is called as a scaling factor, and that is denoted by S. Okay, so उसके बाद तुम लोगों ने शायद से दो टाइप्स लिखा था. All of you have written those two types. First one was constant field scaling, which is also called as full scaling. Just check whether you have written these two types. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. तो पहला टाइप है फुल स्केलिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग. अभी इसमें क्या होता है पहले याद रखो. सी यहाँ पे एज द नेम इज कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, मतलब तुम लोग डिवाइस को स्केल तो करोगे, मींस स्केल मींस यू आर गोइंग टू स्केल इट डाउन. ओके, स्केलिंग अप हम लोग यहाँ पे नहीं करते, वी आर नॉट डूइंग दैट इन VLSI. ओके, सो यू विल स्केल डाउन द डिवाइस, बट while scaling down, what should be remain constant? फील्ड. ओके, कांस्टेंट फील्ड बोला है, दैट मींस तुम लोग स्केलिंग करो. ओके, बट फील्ड जो है, whenever I am talking about field, it is normally electric field. Okay, it is electric field, क्योंकि तुम लोग जो मॉसफेट पे काम कर रहे हो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉसफेट? मॉस तो पता है तुम लोग को, बाद में जो FET है दैट इज फील्ड इफेक्ट Metal ट्रांजिस्टर. oxide field effect हाँ, transistor. फील्ड इफेक्ट. सो फील्ड इफेक्ट मतलब तुम लोगों को पता है कि पूरा FET का या मॉसफेट मतलब वही. तो FET का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन फील्ड इफेक्ट. ओके, फील्ड का इफेक्ट पे वो काम करता है. सो देयर इज वन स्केलिंग विच इज अ फुल स्केलिंग, वेयर यू विल मेंटेन द कांस्टेंट फील्ड. मतलब तुम लोग ऐसे स्केल डाउन करोगे सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल नॉट चेंज. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए. नाउ electric field, can anybody tell me what is the formula for electric field or unit? किसको आइडिया है इलेक्ट्रिक फील्ड? Weber per meter square. This is a magnetic field, and Weber per meter, it is magnetic. Electric field, okay, Newton per electric, coulomb. नहीं Force per charge. नहीं, it is electric field means V by M. Okay, V, what is V over here? V is the voltage. Okay, V is the voltage and divided by M. M is what? Length. ओके, मतलब तुम लोग ने सपोज एक सिलिकॉन बार लिया जिसका लेंथ L है, और वो बार के अक्रॉस तुम लोगों ने एक वोल्टेज अप्लाई किया, दैट वोल्टेज का वैल्यू इज V. देन इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर देयर, so that is calculated by the formula V by M, where M is the length of that silicon bar. Okay, all of you please write down this formula. Write down E electric field is equal to V by M. Actually V by M is the you can say it is unit. अगर फॉर्मूला चाहिए then V by L. L is the length of a silicon bar. फॉर्मूला लिख रहे हो तो V by L आएगा, where V is the voltage applied across the silicon bar and L is the length of a silicon bar. प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला, और आगे से तुम लोग को भी ये याद होना चाहिए. ओके, कभी भी मैंने पूछा तो ये पता होना चाहिए. ओके, अभी इसका मुझे अगर यूनिट लिखना है तो वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट. अपना लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. Okay, so it will be V by M. So write down unit, that is V by M.
Okay, so have you written that formula, electric field? ma'am. Okay, now you have to maintain electric field constant. Okay, and at the same time you have to reduce the length. Okay, suppose silicon bar है, उसका length भी तुम लोग को कम करना है. So what can you do to maintain field constant? सिर्फ लेंथ को अगर मैं कम करूंगी तो चलेगा क्या? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट चाहिए. सो व्हाट शुड आई डू? Vary the voltage. Yes, vary voltage means actually you have to scale down the voltage also, right? समझा? Yes, सी ma'am. मेरे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V बाय L. हाँ, अगर मैंने बोला मुझे L को कम करना है, L मतलब लेंथ को कम करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड दैट लेंथ बाय स्केलिंग फैक्टर S. सो आई विल डू L डिवाइडेड बाय S. ओके, बट अगर सिर्फ L को मैंने डिवाइड किया तो क्या होगा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज. सो तुम लोग को V को भी डिवाइड बाय S करना पड़ेगा. V मींस वोल्टेज, तो वोल्टेज को भी हम लोग स्केल डाउन करेंगे. ओके, सो इन दिस केस इन फुल स्केलिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्केलिंग डाउन बोथ द वोल्टेजेस, मतलब ऑल द पोटेंशियल्स एज वेल एज लेंथ और विड्थ जो भी रहेगा. ओके, मतलब हम लोग डायमेंशन को भी स्केल डाउन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर स्केलिंग डाउन द पोटेंशियल्स आल्सो, so that electric field will be maintained constant. Okay, so you can see in the formula, अगर तुम लोगों ने V को भी डिवाइड बाय S किया और नीचे L को भी डिवाइड बाय S किया, then finally the electric field value will remain constant. Is it? Yes, समझा क्या ये Yes, पॉइंट? ओके, ठीक है. तो ऑल ऑफ यू प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि इन फुल स्केलिंग तुम लोग क्या कर रहे हो, दोनों को भी पोटेंशियल्स एज वेल एज डायमेंशंस यू आर स्केलिंग डाउन बाय अ सेम फैक्टर. ओके, अलग फैक्टर यूज नहीं करेंगे हम लोग, सेम फैक्टर से स्केल डाउन करना है, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज अ स्केलिंग फैक्टर व्हिच इज डिनोटेड बाय S. Okay, so that is the full scaling. Please write this, write down in the full scaling. In full scaling, the magnitude of internal electric field is maintained constant. Magnitude of internal electric field is maintained constant. And this is done by scaling down potentials as well as dimensions. And this is done by, or this is achieved by scaling down all the potentials as well as dimensions by the same factor, which is S. By the same factor, which is S. Completed? Yes, ma'am. Okay. Now, can you see this table? Quantity, there are 3 columns. One is quantity, second is before scaling, and third is after scaling. Okay, so in this table what you can see now, this is the table for full scaling. Okay, full scaling जो तुम लोग को अभी मैंने बताया उसका ये टेबल है. So quantity में मतलब क्या, quantity means various parameters which we are going to scale down. Okay, तो अभी सबसे पहला पैरामीटर है चैनल लेंथ. तो चैनल लेंथ बिफोर स्केलिंग सपोज वो L था. ओके, बिफोर स्केलिंग इट वाज L. आफ्टर स्केलिंग मतलब अभी स्केल डाउन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओरिजिनल L था उसको डिवाइड बाय S करेंगे. सो वी विल गेट द न्यू लेंथ ऑफ अ चैनल. सो दैट न्यू लेंथ इज कॉल्ड एज L dash. So here we can write L dash is equal to L by S. Similarly, we can write down for channel width. Initially before scaling it was W. After scaling it will become W by S. Similarly, gate oxide thickness, that is T ox. Okay, so T ox dash will be T ox divided by S. Next is junction depth. Junction depth is denoted by Xj. Now, can anybody tell me what can be this junction depth? किसको idea है? Okay, नहीं पता है. So what we will do when we will study this particular part, at that time I will explain. It is normally junction depth मतलब क्या होता है, तुम लोग जो diffuse कर रहे हो, okay, you are diffusing n plus region, okay, which you are diffusing 2 n plus region in nmos, right? एक nmos में 2 n plus region होते हैं और 2 n plus region के बीच में there is a channel. तो वो जो n plus region का diffusion होता है वो कितना deep किया है तुम लोग ने, okay, that diffusion is deep there in the p substrate. तो कितना डीप है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दैट डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज द जंक्शन डेप्थ. ओके, तो वो हम लोग बाद में फिर से वी विल कम टू दैट पॉइंट अगेन. सो अभी थोड़ा याद रखो कि xj इज व्हाट, डेप्थ ऑफ अ डिफ्यूजन एक्चुअली. ओके, n प्लस अगर nmos है तो n प्लस डिफ्यूजन में जो n प्लस डिफ्यूजन का जो डेप्थ रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द जंक्शन डेप्थ xj. नेक्स्ट इज पावर सप्लाई. अभी तुम लोगों को पता है मॉसफेट कोई भी सर्किट लो तुम लोग को पावर सप्लाई, पावर तो देना पड़ेगा. सपोज यू आर सप्लाइंग पावर एज VDD. ओके, यू आर गिविंग वोल्टेज एज VDD. सो VDD इज कॉल्ड एज द सप्लाई वोल्टेज. तो सप्लाई वोल्टेज है तो इसको भी हम लोग स्केल डाउन करेंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी द न्यू वोल्टेज दैट विल बी VDD डैश इज इक्वल टू VDD बाय S.
Okay, as we are studying the full scaling, we know that we have to scale down the dimension as well as we have to scale down all the potentials. तो यहाँ पे दो जो main potentials जो हम लोग study करेंगे, that is VDD, that is supply voltage, and second is called as a threshold voltage. So threshold voltage मतलब किसका voltage? It is the threshold voltage of a MOSFET. So VT naught, it is defined by VT naught. कभी कभी VT बोलते हैं, कभी कभी VT नॉट बोलते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन VT एंड VT नॉट. वो तुम लोग को मैं बाद में बताऊंगी. अभी फिलहाल याद रखो कि जो ओरिजिनल उसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहता है MOSFET का, that is called as VT naught. So after scaling, again you are going to scale down it that also. So it will be VT naught dash is equal to VT naught divided by S. ठीक है. Now जो doping densities, okay, now this is something different. यहाँ पे doping densities का कैसे होता है? So doping densities जो है, doping densities में मतलब क्या? Can anybody tell me? Hello? Okay, do you know impurities, acceptor ions, donor ions, पता है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो ये जो impurities होते हैं उससे ही हम लोग doping. Okay, so impurities we are using to dope a particular semiconductor. So वो जो impurities का density होता है, कितना तुम लोग impurities डाल रहे हो, उसका density क्या है? Those densities are denoted by Na and Nd. So Na मतलब acceptor ions density and Nd मतलब donor ions density. So जो density है ना, उसको तुम लोग divide by S नहीं होगा. So that will be multiplication with S. Okay. Now why this is so? Here the reason is you have to maintain. See यहाँ पे लिखा है, it is mentioned. Finally, the Poisson's equation. If you can read this. एक मिनट. Okay, finally, the Poisson's equation describing the relation between charge densities and electric field dictates that the charge densities must be increased by a factor of S in order to maintain the field conditions. Okay, wait a minute. Okay. So what is this? Finally, the Poisson equation describing the relationship between. So what is the Poisson equation? Poisson equation क्या है? वो ऐसा equation है which will give you the relationship between charge densities. Okay, charge densities मतलब Na and Nd and electric field. Okay, electric field और charge densities का equation है. So उससे अभी now we will not go into that detail. But if you want to satisfy that equation, and that is important, okay, तो वो अगर करना है, then what you have to do, you will not scale down the doping densities. Instead, you will multiply those doping densities by factor S. Okay, तो इसको यहाँ पे multiply क्यों किया, उसका reason मैंने तुम लोग को ऊपर बताया. ठीक है. Next is yes. अभी हम लोग ने यहाँ पे जो parameters देखे, okay, the table 3.2 gives some important quantities. Now there are some quantities which are derived quantities. Okay, derived मतलब जो basic quantities है उसको use करके now we have some quantities and how to find उसका relation वो अभी हम लोग देखेंगे. So यहाँ पे can you see this COX? Yes, ma'am. ये COX दिख रहा है. Okay. So what is this COX? क्या होता है? Capacitance of oxide layer. Yes, right. It is oxide capacitance and उसका जो formula है oxide capacitance का formula is epsilon OX upon TOX. Okay, so epsilon मतलब क्या? Permittivity of oxide and TOX is the thickness of oxide. So that is the formula of COX. So अभी मुझे उसको scale down करना है. So COX dash will be epsilon OX will be same. Okay, you cannot change this value. Okay, so epsilon OX is same. Permittivity by the permittivity of oxide will be same. So तुम लोग सिर्फ TOX को change करोगे. So TOX को change करने वाले हो means it will be TOX by its S. That S will go up here and finally can I write S dot COX means COX dash will be S into initial COX. So is it clear this formula?
Yes, ma'am. हाँ ठीक है, अगर किसी को नहीं समझा प्लीज आस्क मी, क्योंकि फिर अभी एक जन बोल रहे हैं समझा तो आई विल गो अहेड। ठीक है, किसी को नहीं समझा यू कैन टेल मी कि मैम नहीं है समझा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इज आईडी लीनियर। COX जैसे हमने डिराइव किया, ओके, COX मतलब आफ्टर स्केलिंग व्हाट विल बी द न्यू ऑक्साइड कैपेसिटेंस। जैसे हम लोगों ने डिराइव किया, सिमिलरली वी विल डिराइव व्हाट विल बी द करंट, न्यू मतलब आईडी डैश, एंड व्हाट विल बी न्यू पावर। ओके, तो न्यू पावर एंड न्यू करंट अपने को अभी फाइंड आउट करना है। सो करंट व्हेन वी से करंट, ड्रेन करंट, वी हैव टू इक्वेशंस। एक होता है आईडी लीनियर, दैट इज ड्रेन करंट इन लीनियर रीजन। याद करो पहले मैंने बेसिक्स जो बताया था उसमें तुम लोगों ने दो इक्वेशंस लिखे हैं ड्रेन करंट के, एक लीनियर का इक्वेशन और एक सैचुरेशन का इक्वेशन। सो आईडी लीनियर एंड आईडी सैचुरेशन। सो आईडी लीनियर का इक्वेशन क्या था? ओके, जस्ट चेक दिस इक्वेशन। इट वाज आईडी लीनियर इज इक्वल टू kn upon 2 in bracket 2 into VGS minus VT into VDS minus VDS square. Okay, just check whether this was the equation of ID linear. Same equation we are using. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, सी ये इक्वेशन सेम रहेगा, मतलब हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी इक्वेशन। तो तुम लोग को मैंने शायद से जब स्टार्टिंग में बेसिक्स पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने तुम लोग को बोला था कि आईडी लीनियर और सैचुरेशन का इक्वेशन याद रखो। सो सेम इक्वेशन वी विल यूज ओवर हियर। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आफ्टर स्केलिंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रेन करंट इन अ लीनियर रीजन, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो उसके लिए क्या होगा, इट विल बी आईडी डैश, तो डैश मतलब आफ्टर स्केलिंग। सो आफ्टर स्केलिंग इट विल बी kn डैश by 2 in bracket 2 into 2 तो कुछ 2 तो कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा VGS। ओके, तो VGS स्केल डाउन करेंगे, सो दैट विल बी VGS डैश। VT भी स्केल डाउन करेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सो दैट विल बी VT डैश डॉट VDS भी स्केल डाउन करने वाले हैं, सो दैट विल बी VDS डैश माइनस VDS डैश स्क्वायर। ओके, सो इन दिस वे यू विल रिप्लेस एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। अभी kn डैश, ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज kn ओवर हियर? पहले kn का फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है? Process transconductor. प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर, दैट इज राइट। फॉर्मूला क्या है उसका? मैंने Mu बताया n COX upon W by L. mu n COX into W by L। ओके, चेक Yes, mu n, ma'am. हाँ इट इज, जिनको नहीं पता है प्लीज राइट इट डाउन। kn का फॉर्मूला, kn जो है यहाँ पे ये जो kn दिख रहा है, ये kn को बोलते हैं प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर, और उसका फॉर्मूला है mu n C naught x, mu n into C naught x into W by L, mu n into C naught x into W by L। प्लीज ऑल ऑफ यू राइट दिस फॉर्मूला समवेयर, बिकॉज अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द न्यू kn डैश वैल्यू। ओके, सो पहले तो kn का फॉर्मूला लिखो। kn का फॉर्मूला क्या होता है? kn इज इक्वल टू mu n C naught x W by L। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन kn डैश, नेक्स्ट राइट डाउन kn डैश। सो नाउ व्हाट विल बी kn डैश का फॉर्मूला? What will be kn dash formula? Mu n will be same, right? Mu n will not change, right? It is the mobility of electron. Yes, ma'am. Hello? Okay. So write down kn dash का formula क्या आएगा अभी? Write down kn dash will be mu n as it is. Mu n के बाद क्या था? COX था। अभी यहाँ पे क्या होगा? It will be COX dash, right? क्योंकि हम लोग kn dash का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो kn dash will be mu n as it is, क्योंकि mu n का स्केलिंग नहीं होता है, mu n will be as it is। COX का स्केलिंग हुआ है, सो COX डैश आएगा वहां पे, एंड नेक्स्ट इज व्हाट W by L, सो W डैश अपॉन L डैश, राइट? Yes, ma'am. Yes. हाँ, अभी इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट राइट डाउन उसी में इक्वल टू, अभी जहां जिसका स्केलिंग हुआ है उसका इक्विवेलेंट फैक्टर लिखो। सो व्हाट इज COX डैश वैल्यू? सी यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, COX डैश इज S into COX, राइट डाउन दैट। लिखा? Yeah, ma'am. mu n as it is रहेगा, समझ रहे क्या तुम लोग को? mu n will remain Yes, as ma'am. it is, mu n will remain as it is। उसके बाद जो COX डैश था उसको तुम लोग कैसे लिखोगे? S into COX, क्योंकि COX डैश अभी यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, सो दैट इज S into COX। उसके बाद क्या है? देयर इज W डैश अपॉन L डैश। व्हाट विल बी W डैश इक्वेशन? W by L, राइट? सॉरी, W by S, राइट? Yes, ma'am. ये देखो यहाँ पे देखो, W डैश इज व्हाट? W by S। सिमिलरली L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो L डैश का। L डैश क्या है? L by S। तो वहां पे जो W by L था वो सेम ही रहेगा, रेशियो विल बी सेम, क्योंकि SS जो
डिवाइड बाय ऐसे कैंसिल हो जाएगा, राइट? Yes, ma'am. So finally, what will be the kn dash value? Can I write kn dash will be mu n into s into cox into w by l? Check. Yeah, ma'am. All of you getting this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको मिल रहा है ना? ठीक है, ओके. सो अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? सॉरी, kn dash is equal to s into kn, s into kn, where kn is mu n c naught x w by l. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, write down that. वो लिखो कहीं पे तो. So kn dash is equal to s into kn, where s is the scaling factor. Okay, तो तुम लोगों ने अभी क्या किया? तुम लोगों ने kn dash का वैल्यू डिराइव किया and you have got kn dash as s into kn. तो वो वैल्यू अभी यहाँ पे ये जो आईडी लीनियर का इक्वेशन तुम लोगों ने लिखा था इसमें तुम लोग सब्स्टिट्यूट करोगे. So kn dash is substituted by s kn by 2 as it is है. Okay, अभी ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है? 2 into vgs minus vt into vds. ओके, तो ये सब वोल्टेजेस है. ओके, और यहाँ पे माइनस वीडीएस स्क्वायर, तो वीडीएस स्क्वायर है. सो कैन आई से व्हेन यू विल स्केल डाउन, व्हेन यू विल रिप्लेस दैट वीडीएस डैश बाय वीडीएस बाय एस, और यहाँ पे भी ये वीजीएस को वीजीएस बाय एस, वीटी डैश को वीटी बाय एस, वीडीएस डैश को वीडीएस बाय एस करोगे तो फाइनली ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में से 1 अपॉन एस स्क्वायर आई कैन टेक कॉमन. इज इट ओके? Yes, ma'am. इज दिस स्टेप अनक्लियर? ये वाला Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Clear. ठीक है. ओके, ठीक है, तो ये समझा तुम लोग को. अभी नेक्स्ट, तो यहाँ पे अभी क्या होगा? ये s जो बाहर था ये s और यहाँ पे नीचे s स्क्वायर है, तो ये s ये एक s स्क्वायर के s से गया, सो बचा क्या? यहाँ पे एक s बचा. एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन? kn by 2 into vgs minus vt vds minus vds स्क्वायर. ये जो इक्वेशन है दिस इज द ओरिजिनल आईडी लीनियर इक्वेशन. ओके, तो ये आईडी वी विल रिप्लेस दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय आईडी लीनियर एंड डिवाइडेड बाय इट विल बी s नाउ. ये जो s यहाँ पे बचा था वो अभी हम लोग डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखेंगे. सो फाइनली वी हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन आईडी डैश लीनियर एंड आईडी लीनियर एज आईडी डैश लीनियर इज इक्वल टू आईडी लीनियर बाय s. इज इट ओके? ये समझा यहाँ तक? Yeah, ma'am. Ma'am, Yes, actually, I have a doubt. हाँ बोलो. Ma'am, in process transconductance, like if we increase the doping densities, then ultimately the doping will increase, right? So like that See- is the mobility and mobility of electrons and holes. So like we should multiply mu n into s. So No, it no. should be k n s square. If you are increasing the doping density, it will not affect mobility of electron. Mobility change नहीं होगा because of that. Doping density इसका उस पे इफेक्ट नहीं होगा. Okay. ठीक है. Okay, so this is ID dash linear. Similarly, ID dash saturation. अभी saturation it is self explanatory क्योंकि तुम लोग को अभी ID linear पता चल गया. तो ID sat भी similarly you will use the ID saturation का जो equation है. So ID sat का equation क्या था? kn by 2 into vgs minus vt the whole square. ठीक है, तो वो इक्वेशन में सेम जैसे अभी इसमें किया वैसे ही करोगे एंड फाइनली यू विल गेट ID sat by s. सो यहाँ पे मेन थिंग इज व्हाट? ड्रेन करंट डैश दैट इज ID dash is equal to ID upon S. Is it okay? Drain current, new drain current is equal to original drain current divided by S. Is it okay? Yeah, ma'am. Okay. ये सिर्फ लिखो. Just write down this equation. ID dash मतलब new ID. ID dash is equal to ID by S. वो ID कोई भी हो सकता है. It can be linear or it can be saturation. ठीक है, ID हो गया. Next is power. अभी पावर का क्या होगा? ओके, व्हाट विल बी न्यू पावर दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो हाउ टू राइट पावर इक्वेशन? पावर कैसे लिखते हैं हम लोग? Voltage into current. यस, राइट. पावर इज वोल्टेज इनटू करंट. सो जस्ट चेक दिस फॉर्मूला. सो P कैन आई राइट फॉर MOSFET पावर कैसे लिखेंगे हम लोग? पावर इज इक्वल टू ID into VDS, where VDS to drain to source voltage and ID is the drain current. ओके, तो ये है पावर का इक्वेशन फॉर MOSFET. अभी P dash मतलब आफ्टर स्केलिंग व्हाट विल हैपन विद पावर दैट वी विल कैलकुलेट. सो P dash विल बी ID dash into VDS dash which is equal to. अभी ID dash का फॉर्मूला क्या है? ID dash is ID upon S, right? ID upon S is the ID dash. VDS dash क्या है? VDS upon S. So finally we can write in this way 1 upon S square into ID into VDS. So ID into VDS is original power which is P. So it will be P upon S square. So new P power, that is new
power is P dash is equal to P upon S square. Is it clear? Yes, ma'am. Power, okay, all of you write down this formula. Power का formula लिखो, new power का directly. P dash का formula लिखो. Completed? Yes, ma'am. Okay. And then Okay, write down next type of scaling. Second type is called as, write down constant voltage scaling. Next type is constant voltage scaling. अभी कोई गेस करेगा ये क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? We will keep voltage constant and will vary electric field and length. कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग मतलब वोल्टेज हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, राइट? जितने भी वोल्टेजेस है उसको हम लोग स्केल डाउन नहीं करेंगे. वी विल नॉट स्केल इट डाउन. वोल्टेजेस विल रिमेन एज इट इज, जैसे थे. तो स्केल डाउन क्या होगा? सिर्फ W जो डायमेंशंस है उनको हम लोग स्केल डाउन करेंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग. So you can see first of all, please see this table 3.4, where you can see quantity, then before scaling, and next is after scaling. अभी ये जो टेबल है वो किसके लिए है? This is for constant voltage scaling. So सबसे पहले quantity है dimension. तो when you say dimension, जितने भी लेंथ वाले हैं सब कुछ वो सब यहाँ पे आएंगे. So W, then L is the length of a channel, W is width of a channel, T ox ऑक्साइड का थिकनेस, XJ जंक्शन का डेप्थ. ओके, सो ये सबका यूनिट क्या है? मीटर है. सबका यूनिट मीटर है. ओके, तो ये जो डायमेंशंस है, बिफोर स्केलिंग ओरिजिनल इट वाज W, L, T ox, XJ. आफ्टर स्केलिंग all of them will be reduced by S. For example, W dash will become W by S, L dash will be L by S, T ox dash will be T ox by S, XJ dash will be XJ by S. Is it okay? Dimension. नेक्स्ट इज वोल्टेजेस. सेकेंड क्वांटिटी वोल्टेजेस. अभी हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज है मतलब वी विल नॉट चेंज, वी विल नॉट स्केल डाउन द वोल्टेजेस. दैट मींस बिफोर स्केलिंग जो वोल्टेजेस थे दे विल रिमेन एज इट इज. सो इट वाज VDD, सपोज एग्जांपल है VDD एंड VT. VT is the threshold voltage, VDD is the supply voltage. So after scaling it will remain as it is, it remain unchanged. Okay, कुछ भी चेंज इसमें नहीं होगा. Voltages will remain as it is. Next is doping densities. So doping densities यहाँ पे Na and Nd before scaling. After scaling now they will be increased by factor S square. Increased मतलब obviously they will be multiplied, means original अगर Na था so that will be multiplied by S square into so S square into Na will be new Na dash. Okay, so this will happen with the doping densities. और ये S square factor कैसे आया? Then again previous में क्या factor था? It was I think S. Okay, previous में S factor था. Doping densities were multiplied by S और यहाँ पे S square. तो ये सब आता है Poisson's equation से. Okay, so अभी we will not go into that detail कि वो exactly कैसे करना है. ओके, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है. फिलहाल इतना याद रखो कि डोपिंग डेंसिटीज अगर इफ इट इज कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग तो उस केस में इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय S स्क्वायर. इफ इट इज कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय S. ओके, इज दिस टेबल क्लियर? 3.4. Yes, ma'am. अभी 3.4 के लिए मतलब जैसे ये टेबल हम लोगों ने लिखा है, सिमिलरली अगेन इसके लिए तुम लोग ID डैश लीनियर देन ID डैश सैचुरेशन कैलकुलेट करोगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस केस में किया है. सिमिलरली यू विल डू दैट. अभी यहाँ पे तुम लोग को क्या मिलेगा? यू विल गेट इक्वेशन एज. अभी ये कैसे आया इट इज तुम लोग ये बाद में स्टडी कर सकते हो, बट वी विल सी द फाइनल फॉर्मूला. सो यू विल गेट न्यू ड्रेन करंट इज इक्वल टू ओल्ड ड्रेन करंट इनटू S. मतलब यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई बाय S हो गया. ओके, सिमिलरली ID लीनियर में भी वही मिलेगा. नेक्स्ट, नाउ वी विल कैलकुलेट द P डैश. P dash is what? New power in case of constant voltage scaling, which is equal to ID dash into VDS dash, which is equal to ID dash. अभी new ID dash क्या है? Just check 3.73. It is S into original ID. So S into old ID into VDS dash. अभी VDS dash क्या होगा? What will be after scaling VDS? VDS. Same. Yes. आफ्टर स्केलिंग भी VDS ही रहेगा. हम लोग उसको स्केल डाउन नहीं कर रहे बिकॉज वी आर इन अ कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, सो इट विल रिमेन VDS ओनली. सो यहाँ पे नाउ चेक ID इनटू VDS इज वाज द ओरिजिनल पावर व्हिच इज P एंड S जो है फैक्टर यहाँ पे. सो इट विल बी P डैश इज इक्वल टू S इनटू
P. So that is 3.74. Is this equation clear? Yes, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है चलो. So 3.74 clear हो गया. Again there are some more quantities. Okay. You can see oxide, capacitance, drain current मतलब ID जो अभी हम लोगों ने किया, power जो किया, then power density का होता है. Power density मतलब power per unit area. So again there are these some quantities which you can again calculate and you will get this formula. So Cox will be new Cox will be S into Cox, new ID dash is equal to S into ID, new P dash is equal to S into P, new P dash new power density will be S cube into old power density. Okay, तो ये सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द पैरामीटर्स एंड देन यू हैव टू गेट इट. Okay, so this was the scaling topic, types of scaling we have completed. इसमें किसी को कुछ अभी डाउट है? Understood? So that we can start with next topic. इसमें से कुछ पार्ट नहीं समझा, ऐसा कुछ है? No, ma'am. Clear. Okay, ठीक है. Okay, now next write down, all of you write down next topic, short channel effects. Write down short channel effects. Okay, can you see this diagram? Figure 3.8 MOSFET basic वाला structure. Yes, ma'am. Yeah, Okay. ma'am. ठीक है, तो ये पहले तो डायमेंशन तुम लोग को पता होना चाहिए. सी यू नो द लेंथ ऑफ अ चैनल. ओके, ये दिख रहा है यहाँ पे चैनल लेंथ L between 2 Yes, ma'am. n plus diffusion. Okay, between 2 n plus diffusion जो लेंथ है that is called as the channel length. Okay, width कहाँ पे आता है? width is the third dimension. ये वाला सी यहाँ पे दिख रहा है, ये width है, तो ये याद रखो, ये W है, यहाँ पे ये L है. एक जो पैरामीटर था that was xj. Okay, तो xj तुम लोग को पता नहीं था. So here what is xj? So ये तुम लोग को सोर्स रीजन एंड ड्रेन रीजन दिख रहा है ना, ये सोर्स एंड ड्रेन. ओके, तो ये कितना डेप्थ में डिफ्यूज हुआ है. ओके, सो मतलब तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, ये जो पॉइंट है, सपोज दिस इज बाउंड्री ऑफ ऑक्साइड. ओके, ये ऑक्साइड लेयर है ऊपर, ये ऑक्साइड एंड ये पी सबस्ट्रेट, इसका जो बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री से लेके अभी सोर्स यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये जो डेप्थ है ना, दैट डेप्थ इज कॉल्ड एज xj. सो इज दिस पॉइंट क्लियर? xj क्या है? दिस डेप्थ इज कॉल्ड एज xj. इज इट? ओके, सो ये जो डेप्थ है ना, ये xj है. सो ये अभी तुम लोग को पता होना चाहिए कि xj क्या है एंड चैनल लेंथ क्या है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी शॉर्ट चैनल इफेक्ट. तो शॉर्ट चैनल इफेक्ट का मतलब क्या है? दीज आर दी सम इफेक्ट्स which will not be there in long channel devices, but they will come into picture when you are dealing with the short channel devices. तो सबसे पहले लॉन्ग चैनल मतलब क्या? इनिशियली जब हम लोगों ने मॉसफेट बनाया था, मतलब बिफोर स्केलिंग, यू कैन अंडरस्टैंड, बिफोर स्केलिंग जो ओरिजिनल मॉसफेट था, तो सपोज वो मॉसफेट ऐसे ही दिख रहा था 3.8 में जो है वो. ओके, सो उसका कुछ लेंथ था, विड्थ था, चैनल लेंथ, चैनल विड्थ एंड डेप्थ ऑफ सोर्स एंड ड्रेन, दैट इज xj. ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग स्केलिंग. ओके, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू अ मिनिमम डायमेंशन. वी आर रिड्यूसिंग द चैनल लेंथ, वी आर रिड्यूसिंग द मिनिमम जो भी फीचर साइज है उसको हम लोग रिड्यूस करते जा रहे हैं. तो जैसे जैसे हम लोग कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो xj है, what happens when you are reducing the channel length, one time will come, ये जो xj है, can you see this xj? ये जो xj है ना, if that xj मतलब junction depth, if that junction depth becomes comparable with channel length, at that time we will call that particular MOSFET as a short channel device. Is it okay? ये समझा? Ma'am, can you repeat? ओके, सी नॉर्मली अभी ये जो डायग्राम तुम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने अगर तुम लोग का क्वेश्चन पूछा, देयर इज एल एंड देयर इज xj, हु इज ग्रेटर, मतलब हुज वैल्यू इज मोर, हुज वैल्यू इज लेस, xj ज्यादा है या l ज्यादा है? बाय सीइंग द डायमेंशन, l, राइट?
Yes, ma'am. L is more than L is, you can say, very much more than xj. Can I say like that? L का वैल्यू xj से बहुत ज्यादा है. Is it okay? यहाँ पे. Yeah, ma'am. Yes, यहाँ पे ma'am. तुम लोग को, okay. So all of you agree with this? So L is very much more than xj. Normally this is the condition. Please write down all of you. L is very much greater than xj. Please write down. L, capital L, that is channel length, is very much greater than xj. It is the condition for long channel device. Is the condition for long channel device. इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोग को कोई डिवाइस मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक उसका L एंड उसका xj, then you will compare these two values. If you find that L is very much greater than xj, then तुम लोग उसको लॉन्ग चैनल डिवाइस बोल सकते हो. ठीक है. बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग स्केलिंग, कम कर रहे, चैनल लेंथ कम कर रहे, विड्थ कम कर रहे. तो एक टाइम आएगा, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, जंक्शन का डेप्थ जो है, ओके, द जंक्शन डेप्थ विल बी अप्रोक्सीमेटली, और यू कैन से कंपेरेबल विद एल, दोनों भी अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे. ओके, सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट चैनल. तो वो टाइम पे वो डिवाइस, यू कैन से नाउ दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट चैनल डिवाइस. सो राइट डाउन when xj becomes comparable with L, when xj becomes comparable with L, that is called as a short channel device. तो इतना तो श्योर है कि शॉर्ट चैनल डिवाइस है, मतलब चैनल का लेंथ अभी बहुत छोटा हो गया. ओके, तुम लोगों ने स्केल डाउन किया, नाउ द चैनल लेंथ इज वेरी मच स्मॉल एंड इट इज नाउ कंपेरेबल विथ xj, and that particular device is called as now short channel device. ये पॉइंट क्लियर हुआ? पहले शॉर्ट चैनल किसको बोलते हैं? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो ये वही जो चीज मैंने तुमको अभी बताया वही यहाँ पे लिखा है. यू कैन रीड दिस आफ्टरवर्ड्स. तो अभी क्या होगा, अगर हम लोग अगर शॉर्ट चैनल, इफ यू आर वर्किंग ऑन द शॉर्ट चैनल डिवाइस, ओके, अभी तुम लोग को शॉर्ट चैनल डिवाइस पे काम करना है, देन यू शुड नो देयर आर सम इफेक्ट्स, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स, और देयर विल बी सम एक्स्ट्रा इफेक्ट्स व्हिच विल कम इनटू पिक्चर, जो कि तुम लोग को लॉन्ग चैनल में नहीं दिखेंगे. ओके, जब तक तुम लोग लॉन्ग चैनल पे हो उस टाइम पे यू कांट सी दोज इफेक्ट्स, बट as you go in the short channel devices there will be some extra effects which will come into picture. And what are those effects? Those effects now we are going to study. Okay, तो ये जो effects है वो क्या क्या करते हैं, ये जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे लिमिटेशंस डालेंगे, तो वो पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लो. सो बिकॉज ऑफ शॉर्ट चैनल the limitations imposed on electron drift characteristics in the channel. Okay, now what do you mean by this? Electron drift मतलब क्या? किसी को पता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट? तुम लोग को मैंने ड्रिफ्ट करंट बताया था ईडीसी में, याद है? ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट बताया था, याद है? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो वो जिनको याद है उनको पता रहेगा ड्रिफ्ट करंट क्या होता है. तो ड्रिफ्ट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यू कैन से व्हेन वी आर अप्लाइंग पोटेंशियल. ओके, हम लोग जब डायोड का एग्जांपल लो, डायोड में हम लोग अगर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, because of under that effect of electric field, electrons are drifted from one point to the another. Okay, they are drifted, and this is because of electric field. Electric field की वजह से वो ड्रिफ्ट हो रहा है, that is called as the drift current. अगर डिफ्यूजन मतलब if there is difference in the doping densities और उसके वजह से अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, then that is the diffusion current. तो हम लोग यहाँ पे अभी ड्रिफ्ट का सोच रहे हैं. तो ड्रिफ्ट मतलब क्या? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ देयर इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट. तो अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन द शॉर्ट चैनल, देन शॉर्ट चैनल में एक चीज याद रखो कि लिमिटेशन आएगा किस पे? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ओके, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कहाँ पे होने वाला है? चैनल में. जो भी है चैनल में होगा, क्योंकि चैनल से ही इलेक्ट्रॉन पास होता है, एंड दैट विल एक्चुअली फाइनली कंट्रीब्यूट टू द ड्रेन करंट. तो ये एक लिमिटेशन आने वाला है. सेकंड क्या है? The modification of the threshold voltage due to shortening of channel length. Modification of threshold voltage, this is the very important effect. Okay, तो ये कैसे होता है वो भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये दूसरा चीज ये है, लॉन्ग चैनल में सपोज तुम लोग के पास जो मॉसफेट था, लॉन्ग चैनल मॉसफेट, उसका एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वोल्टेज था, बट आफ्टर स्केलिंग डाउन, ओके, स्केलिंग डाउन तुम लोगों ने स्केल डाउन किया एक पर्टिकुलर टाइम पे व्हेन इट एंटर्स इनटू द शॉर्ट चैनल जो भी रीजन है, उस टाइम पे क्या होगा? देयर विल बी मॉडिफिकेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. मतलब पहले उसका जो कुछ थ्रेशोल्ड था, नाउ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज विल बी डिफरेंट. ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट implication of the short channel. So abhi what are the various effects? Just write down these 2 points. Because of short channel,
because of the short channel. Write down first one. Limitations will be imposed on electron drift. Limitations will be imposed on electron drift characteristics in channel. And second, modification of threshold voltage. ये ड्यू टू शॉर्टिंग मत लिखो क्योंकि वो अंडरस्टूड है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट चैनल कर रहे हैं, शॉर्ट चैनल इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब चैनल शॉर्ट किया ही है उसमें, इट इज अंडरस्टूड. सो राइट डाउन सेकंड इफेक्ट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट पहले तो चेंज हो रहा है, उसमें इफेक्ट आएगा, एंड दूसरा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज में. कंप्लीटेड दिस थिंग. Now can we start with detail effects? Yes, ma'am. Okay, now write down first effect. Write down. अभी हम लोग अलग अलग शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स क्या है वो देखने वाले. ओके, नाउ अगेन दिस इज वाइवा क्वेश्चन भी है, वाइवा में भी पूछेंगे. एंड सेकंड मतलब ये थियरी में नॉर्मली आता है, थियरी पेपर में एक्सप्लेन शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स. तो उस टाइम पे तुम लोग को ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो दैट डिपेंड्स ऑन मार्क्स, कितने मार्क्स के लिए पूछा है उस हिसाब से तुम लोग को अपना आंसर लिखना है. बट द डायमेंशन मतलब डायमेंशन नहीं, डायग्राम और जो इक्वेशंस रहेंगे दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट इफेक्ट लिखो. द फर्स्ट इफेक्ट इज कॉल्ड एज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. फर्स्ट इफेक्ट इज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. Okay. Okay. Now, what is the channel length modulation? See. Okay, all of you just अभी यहाँ पे मुझे drain character. Okay, all of you know drain characteristics of MOSFET. Yes, ma'am. तुम लोग को मैंने लास्ट टाइम इस पे माइक्रोविंड पे बताया था ना. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो कैन यू रिकलेक्ट कि माइक्रोविंड में हम लोगों ने एक मॉस एनमॉस ड्रॉ किया था, लैब जो हुआ था अभी याद है, एनमॉस ड्रॉ Yes, किया था ma'am. माइक्रोवेव सॉफ्टवेयर में. हाँ, ओके, ma'am. और फिर वो हम लोग ने एनमॉस का हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया था, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज क्या था, ट्रांसफर, राइट. एक मिनट यहाँ पे सिस्टम. Okay, so what is this? This is MOS, right? Yes, ma'am. ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे हम लोगों ने किया था. ओके, सोर्स रीजन, सोर्स एंड ड्रेन रीजन, और ये जो रेड कलर का है वो पॉलीसिलिकॉन विच इज गेट. ठीक है, इसका हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया था. ओके, सो कैन यू सी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स? Yeah, ma'am. ओके, तो ये जो हम लोगों ने स्टडी किया था, दिस नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ये कौन सा कर्व है? इट इज आईडी वर्सेस वीडीएस. ओके, आईडी वर्सेस वीडीएस. आईडी इज इन माइक्रोएम्प्स, वीडीएस जो भी है वोल्टेज में है. सो नाउ द check here. Okay, now here one question. If I'm increasing VDS, okay, if I'm increasing VDS, what will happen? Initially what will happen, current जो drain current है, it will increase in a linear way. Just check this particular graph 1.20 वाला. ओके, मतलब ये वाला जो कर्व है, जस्ट सी दिस कर्व. तो जैसे जैसे तुम लोग VDS इंक्रीज कर रहे हो, पहले ये इतना रीजन में यू कैन से देयर इज अ सडन इंक्रीज इन ड्रेन करंट, राइट. कैन आई सी हियर, ये पॉइंट तक सडन इंक्रीज है, ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. कैन यू सी दिस? देयर इज अ लीनियर Yes, ma'am. इंक्रीज, देयर इज अ लीनियर इंक्रीज इन ड्रेन करंट टिल दिस पॉइंट. ओके, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ड्रेन करंट उतना तेजी से इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं. ओके, द ड्रेन करंट यू कैन सी इंक्रीज इज नाउ रिड्यूस्ड. ओके, सो अभी वो थोड़ा धीरे धीरे रिड्यूस, सॉरी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, विच यू कैन सी ओवर हियर. सी, तो यू कैन से ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी ये जो कर्व है, ये कर्व यहाँ पे फ्लैट हो गया. ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट इट इज फ्लैट. अभी
अगर तुम लोग इफ यू कैन रिकलेक्ट इन ईडीसी वी हैव स्टडीड द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, आइडियल ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो कैन यू टेल मी इन आइडियल ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिस कर्व, ये जो कर्व था, ओके, ये जो ड्रेन कर्व था, कैन आई से दिस ड्रेन कर्व इन अ सैचुरेशन रीजन इट विल बी पैरेलल टू द वीडीएस एक्सिस? Yeah, ma'am. याद आया कुछ सबको? हम लोग ने जब ड्रॉ किया था, तुम लोग आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे, यहाँ तक ऐसा इंक्रीज होता है, उसके बाद करंट बिकम्स कांस्टेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, which is called as a pinch off point, okay, that after pinch off current will become constant, okay, उसके बाद वो it will not increase, it will remain as it is even if you increase VDS. Can you recollect this thing? Yes, ma'am. Yeah. Okay, तो ये याद रखो, okay, तो ये जो मैंने बोला ये क्या था, ये था आइडियल थिंग, ओके, बट प्रैक्टिकली अभी हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक मॉस एक्चुअली ड्रॉ किया एंड वी हैव स्टडीड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे कैन आई से here the drain current, if you increase VDS, okay, if you increase VDS drain current, there is a small increase in drain current, right? There is a small increase in drain current is not remaining constant. Is it okay? Yes. हाँ, मतलब यहाँ पे VDS अगर तुम लोग इंक्रीज करोगे तो एक्चुअली ड्रेन करंट कांस्टेंट रहना चाहिए. इफ यू सी द आइडियल तो ड्रेन करंट कांस्टेंट रहना चाहिए, बट कांस्टेंट नहीं रह रहा है. क्या हो रहा है? इफ यू इंक्रीज VDS देयर इज अ स्लाइट चेंज, स्लाइट इंक्रीज इन द आईडी आल्सो. जैसे जैसे तुम लोग VDS इंक्रीज करते जाओगे तो आईडी भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, कितना इंक्रीज हो रहा है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय ड्राइंग स्लोप एट दिस पॉइंट. ओके, तो स्लोप मतलब कोई भी पॉइंट लो और वो पॉइंट पे तुम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करो. तो सपोज मैंने अगर यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया तो व्हाट इज द चेंज इन VDS? सपोज ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ओके, इफ आई कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो ये 2 पॉइंट लो, ये 2 पॉइंट में व्हाट इज द चेंज इन VDS मतलब यहाँ से यहाँ चेंज हुआ. सपोज 0.80 से 1, टेक दिस पॉइंट एंड टेक दिस पॉइंट. तो 0.80 से 1 जब वोल्टेज VDS चेंज हुआ उस टाइम पे करंट यहाँ से यहाँ चेंज हुआ. ओके, मतलब करंट फ्रॉम एक सपोज यहाँ पे 175 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ से यहाँ तक करंट चेंज हुआ, सो दैट इज द चेंज इन करंट. सो चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन वोल्टेज, it is nothing but delta y upon delta x. Is it okay? Yes. Delta y upon delta x. Delta y मतलब y2 minus y1 upon x2 minus x1. So ये चीज मुझे क्या देगा? It will give me slope of this part. Is it okay? Yes, ma'am. Yeah. Okay. अभी मैंने बोला अगर मैंने स्लोप को इन्वर्ट किया, then it will be delta VD upon delta ID, right? Yes. Slope कैसे लिखोगे? How will you write slope for this? You will write delta ID upon delta VD. Okay, that is slope. अभी मैंने बोला उसका इन्वर्स करो, स्लोप को इन्वर्स करो, तो तुम लोग क्या करोगे? डेल्टा VD अपॉन डेल्टा ID. Now can I say delta VD upon delta ID? It is nothing but small RD, which is the dynamic resistance. Yeah, ma'am. Okay, all of you write down these points. जल्दी लिखो. अगर तुम लोग को चाहिए तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक कर्व ड्रॉ करो जहाँ पे उसका स्लोप चेंज हो रहा है. इफ यू इंक्रीज VDS, शो देयर ट्रायंगल. ओके, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करो. अभी मुझे वो डायग्राम एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये सब कुछ था, सो इसलिए मैंने अभी जस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक से दिखा रही हूँ. एंड राइट डाउन स्लोप इज गिवन बाय डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VDS, delta ID upon delta VDS. So that is slope. And inverse of slope, that means 1 by slope is equal to delta VD upon delta ID, which is equal to RD, where RD is called as drain resistance. उसको क्या बोलते हैं? Drain resistance बोलते हैं, याद रखो. RD is called as drain resistance, internal drain resistance. ये सब कुछ MOSFET के अंदर है. Okay, is it clear this point? Yeah, ma'am. Clear. ओके, ठीक है. हाँ, तो अभी हम लोग ये स्टडी कर रहे थे. ओके, सो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन क्या है? सो सैचुरेशन रीजन में, ओके, व्हेन MOSFET एंटर्स इन द सैचुरेशन रीजन, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन मतलब चैनल का लेंथ तुम लोग चेंज कर रहे हो. सो द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल इज एक्चुअली मॉड्यूलेटेड बाय द अप्लाइड VDS. ओके, VDS तुम लोग जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, हाँ, नाउ वी विल सी दैट डायग्राम. ओके, शायद से यहाँ पे हम लोगों ने देखा था. ओके, कैन यू रिकलेक्ट, ये हम लोगों ने जब स्टडी किया था? कैन यू सी दिस डायग्राम? Yes,
Yeah, ma'am. ma'am. कैन यू सी फिगर बी एंड फिगर सी? ओके, फिगर बी में एक वीडी का वैल्यू है कुछ, दैट वीडी का वैल्यू इज वीडीएस सेट, मतलब दैट वीडी इज नाउ एट द एज ऑफ सैचुरेशन, ओके, सैचुरेशन के एज पे है, तो उस टाइम पे चैनल लेंथ पूरा है, यहाँ कंप्लीट एल इज योर चैनल लेंथ। बट अगर मैंने वीडी को बियॉन्ड वीडी सेट इंक्रीज किया, दैट मीन्स इफ वीडी इज ग्रेटर देन वीडी सेट, देन व्हाट विल हैपन विद द चैनल लेंथ? Now what is, see this, what will happen, ये जो pinch off point था, now that point has shifted to the left towards source, वो यहाँ तक आ गया, so can I say because of this the effective channel length is reduced now? Yeah, ma'am. ये समझ रहे हैं क्या सबको? Yes, ma'am. हाँ, because Yes, of ma'am. हाँ, because of increase in VDS अगर तुम लोग एक VD सेट के आगे, VD सेट का मतलब ये है कि तुम लोग सैचुरेशन के एज पे हो, VD सेट से तुम लोग जरा भी आगे गए मतलब तुम लोग ने सैचुरेशन में एंटर किया, ओके, MOSFET हैज एंटर्ड इनटू द सैचुरेशन, दैट इज द मीनिंग। तो व्हेन वी से VD इज ग्रेटर देन VD सेट, मतलब नाउ MOSFET इज इन सैचुरेशन, और उसमें सैचुरेशन में जाने के बाद अगर तुम लोग फिर भी VD को इंक्रीज कर रहे हो, इफ यू आर इंक्रीजिंग VDS फर्दर, देन जितना जितना ज्यादा VDS चेंज करो, जितना ज्यादा VDS इंक्रीज करोगे, pinch off point will go on shifting towards source and it will result into it will result into reduction of effective channel length L. Can you see this? Yes, ma'am. Okay, so all of you agree with this point? ये समझा सबको? Yeah, ma'am. Clear. Okay, now Yes, from ma'am. this- yes, from this can I say here the channel length is modulated as the channel length is modulated by the application of VDS voltage? Yeah, ma'am. है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग VDS को चेंज करेंगे, एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सैचुरेशन रीजन, तो सैचुरेशन रीजन में तुम लोग VDS को जितना जितना चेंज करते जाओगे, मतलब उसका इफेक्ट किस पे होने वाला है? उसका इफेक्ट होने वाला है चैनल के लेंथ पे। तुम लोग अगर VDS को इंक्रीज कर रहे हो तो चैनल लेंथ रिड्यूस होगा, अगर तुम लोग VDS को डिक्रीज कर रहे हो तो चैनल लेंथ इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, And this ma'am. is called as a channel length modulation. Is it okay? So what is channel length modulation? Is it okay? Channel length modulation क्या है, समझा अभी? Yes, ma'am. तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन मतलब तुम लोग, ओके 23 हो गया है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। तो इसका अभी कुछ नहीं, एक इक्वेशन है वो हम लोग देखेंगे, सो विल स्टडी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। नाउ वेट अ मिनट, आई विल टेक द अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव, प्लीज डोंट लीव नाउ। अभी यहाँ पे 44 मतलब टोटल 42 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ओके, 42 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो उनका अटेंडेंस लगेगा। Okay, so I have taken the attendance. You can leave. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.